Good morning, dear students. Welcome back in your computer class. Today, in this video session, I am going to start chapter 3, which is Advanced Features of Access 2013. In the previous chapter, we have discussed about what is Access application, how to create database in Access application, how to manage it, and how to create tables in Access application. In this chapter, we will discuss about some important objects of Access application like tables, forms, queries, and reports. As we know that table is an object which is used to create database in Access application, and query is an object which helps to extract data from one or more tables based on given conditions. According to Access application, some other objects are forms and reports. Forms and reports helps to enter or display data in a user-friendly manner in the database. First one point is query. According to name, query means to find out something. Query means to search something. Query means inquiry. It means if you want to search, if you want to find some important data inside Access database, you should use query feature. You should create query object in the Access application. Query helps to retrieve selective data based on a specific condition from one or more tables. क्वेरी की मदद से हम लोग किसी भी डेटा को फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ कंडीशन अप्लाई करके, और क्वेरी अप्लाई किया जा सकता है अलग अलग टेबलों में अलग अलग तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, you may design a query to display names of all the students who have secured more than 90%, or a query to find out details of customers who made a purchase in the past 1 month. Here are some examples. These examples show that the student who secure more than 90% marks is displayed according to query. And another example is the persons or customer who purchase items in the past 1 month. Similarly, you can apply different queries in different tables. Now come to know how to create query. Just like table, जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते थे, similarly there is a query design view in which query can be created. In query dataset view, in which result of the query are displayed. query को भी हम क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को डिस्प्ले भी करवाया जा सकता है. क्वेरी को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. स्टेप 1, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. इफ़ यू वांट टू क्रिएट क्वेरी, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, टेबल्स, यू शुड गो टू क्रिएट टैब ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको टेबल क्रिएट करना हो, क्वेरी क्रिएट करना हो, रिपोर्ट क्रिएट करना हो, या फिर फॉर्म्स क्रिएट करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू क्रिएट टैब ऑप्शन. सबसे पहले आपको क्रिएट टैब पे जाना होगा. स्टेप सेकेंड, क्लिक ऑन द क्वेरी ऑप्शन.
In the queries group, the show table dialog box appear. जैसे ही आप क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जो कि अवेलेबल है क्वेरी ग्रुप में, तो क्वेरी जो है वो अपीयर होगा और टेबल एक जो है वो दिखाई देंगे आपको वर्किंग एरिया में. एज यू कैन सी हियर, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर you can judge query. And step 3, choose the table on which you want to base your queries and click on the add button. और फिगर नंबर 3.2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल दिखाया गया है. जैसा कि यहाँ पे एक ही टेबल है, इसलिए डॉक्टर का ही टेबल दिख रहा है. अगर यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स होते आपके एक्सेस डेटाबेस में, तो आप यहाँ पे बहुत सारे टेबल को देख सकते थे, लेकिन यहाँ सिंगल टेबल है इसलिए एक ही दिख रहा है. आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टेबल, क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन टू क्रिएट अ क्वेरी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टेबल. ओके, तो जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी क्वेरी क्रिएट हो जाएंगे. आफ्टर एडिंग द टेबल, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स and select the table appearance in the small window in the upper section of the query design view. और ऐसा करने से क्या होगा कि आपको query design view में एक आपको दिखेगा, query design view दिखेगा अपर पोर्शन पे, जो वर्किंग एरिया है उसके अपर पोर्शन पे एक बॉक्स दिखाई देंगे जो कि आपका query design view कहलाएगा. As you can see in figure number 3.3, this is the query design view. Okay, come to the next. In next step, add the fields to be used in the query in the design grid by following any one of the following. और इसके बाद क्या करना है, आपको फील्ड को ऐड करना है. यानी जैसे ही आप क्वेरी ऐड कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर फील्ड को ऐड करना है. किन किन फील्ड्स को आपको क्वेरी में डिस्प्ले करवाना है. डबल क्लिक ऑन द फील्ड, और फील्ड को क्लिक करने, फील्ड को ऐड करने के लिए किसी भी फील्ड पे आपको डबल क्लिक करना है. फील्ड नेम पे इन द स्मॉल टेबल विंडो इन द अपर सेक्शन ऑफ द क्वेरी डिज़ाइन व्यू. क्वेरी डिज़ाइन व्यू जो बना हुआ है ऊपर में, उसमें आपको क्या करना है, किसी भी फील्ड नेम पे क्लिक करना है जिसे आपको क्वेरी में ऐड करना है. या नहीं तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं, अदरवाइज डबल क्लिक कर सकते हैं. देयर आर 2 ऑप्शंस टू ऐड फील्ड्स इनसाइड द क्वेरी, as you can see in this figure. Okay, come to the next. Step 5 tell us about how to search or how to apply conditions. Type the search condition in the criteria row of the field on the basis of which you want to choose or filter the records. और स्टेप 5 कह रहा है कि आप यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे. जैसा कंडीशन आप चाह रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्वेरी लगाना चाह रहे हैं, वो कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा. देन आफ्टर क्लियर द शो चेक बॉक्स फॉर फील्ड दैट शुड नॉट अपीयर इन द क्वेरी रिजल्ट. और चेक बॉक्स ऑप्शन को क्या करना है, अनटिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि वो अपीयर नहीं होंगे. चेक बॉक्स नहीं अपीयर होगा क्योंकि यहाँ पे चेक बॉक्स, यहाँ बहुत सारे चेक बॉक्स बने हुए हैं. एज यू कैन सी हियर, जिसे जिसे आपको दिखाना है उसे उसे चेक करना है, और जिसे जिसे नहीं दिखाना है जिस फील्ड को, उसमें अनचेक करना है, अनटिक करना है. ओके, कम टू द स्टेप 7. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इफ यू वांट टू क्वेरी रिजल्ट टू बी सॉर्टेड, देन सेलेक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द सॉर्ट बॉक्स अंडर द फील्ड. अगर आप चाहते हैं सॉर्टिंग करना वैल्यूज़ को, तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आप चाहते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में डाटा को अरेंज करना, तो यू कैन डू इट बाय क्लिकिंग ऑन सॉर्ट ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इन द सॉर्ट बॉक्स अंडर द फी फील्ड. फी फील्ड में क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया गया. इट मीन्स फी जो है ना, वो बढ़ते क्रम में दिखाया जाएगा कि किनका फी ज़्यादा है, किनका फी कम है, वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे सारे के सारे. और लिमिटेशन भी लगा दिया गया है यहाँ पे
कि फी जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए। नेक्स्ट वन स्टेप इज स्टेप 8. Click on the Save option in the Quick Access toolbar or the Save option on the File tab to save the query. After applying conditions, after applying all settings, you can click on Save option to save the query. And you will notice that आप एक चीज़ notice कीजिएगा, the query object gets added in the navigation pane. And you know that navigation pane is displayed in the left side of the access window. Come to the next step, step 9. Click on Run option in the result group on the Design tab to execute query. अब जो query आपने create किया है, जो condition आपने apply किया है, उसके according अगर आप चाहते हैं result को देखना, तो उसके लिए आपको Run option पे click करना होगा. जैसे ही आप रन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपने कंडीशन अप्लाई किया है क्वेरी में, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे डेटा सॉर्ट हो जाएंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे और फिर वो रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे ऑन योर वर्किंग एरिया. द क्वेरी रिजल्ट अपीयर इन द डेटा सेट व्यू. और जो क्वेरी है वो किस फॉर्मेट में आएगा, डेटा सेट व्यू के फॉर्मेट में आएगा, विच लुक्स लाइक अ टेबल. और जो दिखेगा कैसा, एक टेबल के जैसा दिखेगा. You will notice that, और इस बात की भी आप नोटिस कर सकते हैं, query displays the details of all the doctors with fee more than 600. और आप देखेंगे कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स होंगे उनका कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो मोर देन 600 होगा, क्योंकि आपने कंडीशन अप्लाई किया था जिसमें आपने लिखा था कि फ़ी इज़ मोर देन 600. द पर्सन हुज फी इज़, द डॉक्टर हुज फी इज़ मोर देन 600 इज़ डिस्प्लेड. सो inside the result section, only the doctor whose fee is more than 600 is displayed. Okay, as you can see, this is the result. This is the result of query where only two doctor is available. Dr. Joshi, whose fee is 700 consultancy fee, and next one is Dr. Mala, whose consultancy fee is 750. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग टेबल यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ क्वेरी, यू कैन अप्लाई एनी फील्ड, इन एनी फील्ड एनी इंफॉर्मेशंस, एंड देन आफ्टर रन द क्वेरी एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन you will get the result from the Access database. This is the way to apply query. query को अप्लाई करने का ये तरीका है. और क्वेरी जब भी अप्लाई किया जाएगा तो वो टेबल पे ही किया जाएगा. आफ्टर क्रिएटिंग टेबल यू शुड अप्लाई क्वेरी, यू शुड क्रिएट क्वेरी. ओके, एंड यू कैन आल्सो अप्लाई मल्टीपल क्वेरीज, और यू कैन आल्सो अप्लाई मल्टीपल कंडीशंस इनसाइड द क्वेरीज. अगर आप चाहें तो एक टेबल के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज लगा सकते हैं, या एक क्वेरीज आपने एक ही क्वेरीज लगाया है टेबल पे और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं. तो यू कैन फ्री टू सेट ऑल फीचर्स ऑन द टेबल. In the next video session, I will discuss how to create query with multiple conditions and how to create multiple queries on a selected table. Thanks for watching.